How did you react when you came to know that Champaran Mutton is nominated to Oscar Student Academy Award semi-finals? चुप रहिए। आज के बाद इस घर में कोई मटन का नाम नहीं लेगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही दिया है मुंबई ने और माई जर्नी वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क। कि जब आपने चंपारण मटन की जो स्क्रिप्ट पढ़ी, हाउ डिड यू रिएक्ट और हाउ डिड यू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर दैट यू वर प्लेइंग? The films we watch normally does not go for Oscars. ओ फुल गेना चाह हाँ और पैसा दाना जरूरी है हाँ। When you see Chandan and he's talking to his friends और उसके जो गांव का प्लॉट है, he's talking to Bajita. I come from Champaran. I'm very much obsessed with Champaran. तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो मैं कैरी कर रही हूँ। सच्चों में हमको उतना मटन खाने का मन नहीं है। How was the family's reaction when your parents came to know that the movie is nominated for the semi-finals? Everyone is calling, this has happened, this has happened. So everyone was like, Hi Falak. It is Hi. nice to have you with us. Honestly speaking, this is my first time interviewing an actor, and I'm so glad that I could do it with you. Thank you so much. It's an honor. So yeah, so how have you been? All good, all good. How are you doing? Yeah, I'm good too. So you are in Delhi? No, I'm in Mumbai. Acha, you are in Mumbai. Oh, Yeah. great. You're in Mumbai too, right? Yeah, yes, of course. Yes, I'm in Mumbai. अच्छा, so आप कितने साल से मुंबई में हो? It's been, I think, 8 years. Been 8 years. Oh my God, that's so great. So, how was the journey living in Mumbai? It was, as expected, a bit a roller coaster, of course. But जितना सोचा था उससे ज्यादा ही दिया है मुंबई ने और कहेंगे कि स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा थी कंपैरेटिवली, क्योंकि जब हम लोग बाहर से आते हैं तो उसको लगता है कि अच्छा यहाँ जाएंगे एंड जहाँ जाएंगे एंड यू गेट क्लिक। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद ऐसा होता होगा, बट नॉट फॉर मी। माई जर्नी वॉज फुल ऑफ आई वुड से स्ट्रगल्स एंड हार्ड वर्क. So where I am today, I can say it hard earned, Yeah, the platform where I am. Yeah. yeah. So, जब मुंबई की बात होती है तो पीपल टॉक अबाउट द लोकल ट्रेन्स अ लॉट. सो आपने कभी ट्रैवल किया है लोकल ट्रेन्स में, मुंबई लोकल्स में? यस ट्रैवल किया है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हूँ मैं। बट फॉर ओके. एक्सपीरियंस इनिशियली मैंने ट्रैवल किया है, बिकॉज मेरी लोकेलिटी और मेरा वर्क प्लेस वैसा रहा है कि जरूरत नहीं पड़ी। हाँ. बट मुझे लगता है कि इन 8 सालों में 8 से 10 बार ट्रैवल किया है, नॉट मोर देन दैट। ओके. सो मुझे जानना था कि आप ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आप कब से हो, लाइक हाउ मेनी इयर्स हैज इट बिन? 2018, I guess. 2018. 2018. Oh my God. And wow, one of the noteworthy projects you've been praised for is the Champaran Mutton, and we have Yeah, to talk about it. of I course, know of you course. must have been asked this question over a million times, but honestly, how did you react when you came to know that Champaran Mutton is nominated to Oscar Student Academy Award semi-finals? The first reaction was like, matlab, we've only heard of Oscars in maybe TVs for international films or indie films, definitely. But the kind of films we watch normally does not go for Oscars. That's what we watch in theaters. But हाँ, अभी trend काफी change हो गया है. अभी festivals की film और commercial काफी merge हो गए हैं. That is Right. really great thing for industry. Normally हमेशा हमारी industry में ना ये दो streams parallelly work करते हैं. जो फिल्म इंडस्ट्री एक्टर्स होते हैं तो उनको ही पता होता है व्हाट आर फेस्टिवल फिल्म्स, व्हाट आर नॉन कमर्शियल फिल्म्स, व्हाट आर आर्ट सिनेमास, बट Right. नाउ इट्स गेटिंग वेरी नैरोड. इट्स वेरी ग्रेट थिंग. सो फर्स्ट टाइम जब मैंने सुना, इट वाज लाइक ओके, व्हाट इज इट, आई मीन लाइक हाउ इट कैन हैपन. वो बहुत ही एक वैसा था कि और हमें जब FTII ने जब ये डाली थी ऑस्कर्स में, सो हमें पता भी नहीं था. सो आई वाज इन बिहार, आई थिंक वेकेशनिंग, ईद का टाइम था. So my director Ranjan sir called me and he said कि listen, we have been shortlisted for this Oscars. मैंने बोला oh God, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं है. मतलब अभी क्या होता है, बहुत इनिशियल था and getting selected itself was I Very mean like blessing. a greatest deal for us. मतलब Yes. it was वहाँ सिलेक्शन होना हमारे लिए, वही कहते हैं ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली हरकत. सो आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर. जो भी मेरे को सामने मिल रहा था मैंने बता रही थी उसको कि अरे दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड.
बट पब्लिकली या फिर मुझे लगता है कि बाहर हम लोगों ने कुछ ऐसा दिया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, बिकॉज इट वाज नॉट इन द न्यूज दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट कुछ दिन के बाद व्हेन इट गॉट qualified to semi finale, Yeah. then it, I think, created its own way and buzz in the uh, entire town, and I would say in India, of course, because Yeah. सारे nationals, and क्योंकि मैं बिहार से हूँ, and I was there जब ये न्यूज आउट हुई, तो I was in बिहार, तो बिहार में एक ज्यादा बज हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो डायरेक्टर्स, मी एंड चंदन, हम लोग तीनों बिहार के हैं, और ये स्टोरी काइंड ऑफ बिहार लाइन की है, तो तो वहां पे थोड़ा बज हुआ। एंड देन ये नहीं बोलूंगी कि मुझे बिहार से जितना प्यार मिला, बाहर भी जब मैं मुंबई आई, एंड नेशनल्स इन दिल्ली, सब जगह से उतना ही प्यार मिला था। Yes, ma'am. It was actually a very beautiful movie, and especially, like I wanted to ask कि जब आपने चंपारण मटन की जो स्क्रिप्ट पढ़ी, तभी like how did you react, or how did you understand the character that you were playing? Because the character that you played is so rooted. So I just wanted to know कि आपने कुछ preparation की, या like what was the process behind it? ऑफ कोर्स प्रिपरेशंस की हम लोगों ने, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, और बिफोर गोइंग टू पुणे इटसेल्फ, मैंने मतलब मैं एज एन एक्टर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मेरे को बिफोर हैंड प्रिपरेशन करना बहुत पसंद होता है। मेरा एक सब एक्टर्स का वे ऑफ वर्किंग अलग होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज और उनकी जो भी एक्टिंग के प्रोसीजर्स होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर मी इट्स लाइक कि अगर मैं वट एवर दिस कैरेक्टर इज, उसके शूज में घुस जाऊं, अगर कोई मुझे ये देखे और मुझे एज अ फलक खान ऐसे देखे, तो ना ही पहचाने और ना ही उनके चाल ढाल से वो करे, तो वो मेरी एक बेस्ट टेक्निक रहती है कि मैं कितना ज्यादा उसके अंदर घुस सकती हूँ। एंड देन बिफोर हैंड, मतलब गोइंग टू पुणे, आई हैव डन मल्टीपल राउंड ऑफ रीडिंग्स, हम लोगों ने ऑनलाइन भी, कॉल्स पे भी रीडिंग्स बहुत की। फिर जाने के बाद मुझे लगता है बिफोर गोइंग ऑन शूट 3 से 4 दिन हम लोगों ने मल्टीपल राउंड ऑफ रीडिंग्स की विद ऑल द एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड राइटर्स। कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश थी, कहाँ हम इस एक्ट को और नेचुरल कर सकते थे, क्योंकि सब लोग जब एक जगह जुड़ते हैं, उनकी केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो द बॉन्ड ऑफ actors and directors and between the co-actors is really important, which Yeah. Ultimately what you see on screen is, अगर Very हमारा बॉन्ड ऑफ स्क्रीन अच्छा है, then you naturally see it on screen. So that is all about getting along really well, having a multiple round of readings and getting into the character. You have this back stories, हम एक्टर दुनिया में हम लोग बात करते हैं कि इस कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी जो हम ऑन स्क्रीन नहीं देखते, इट्स नॉट ऑन द स्क्रीन प्ले और इन डायलॉग्स, बट इफ यू नो द वेयर दिस कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, वो सारी चीजें हम लोगों को जानना, मतलब लाइक मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि अच्छा ठीक है ये क्यों आई। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट से कि इन दिस फिल्म का जो लैंग्वेज है इट्स बज्जिका, बट आई से इट बिहारी, ठीक है, बिकॉज जो शादी का प्लॉट दिखाई, इट्स नॉट विजिबली देयर ऑन ये दिस फिल्म, बट व्हाट इज द बैक स्टोरी, क्योंकि दो अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करें। व्हेन यू सी चंदन इज व्हेन इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स, और उसके जो गांव का प्लॉट है, ही इज टॉकिंग टू बज्जिका, आई कम फ्रॉम चंपारण, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद चंपारण, तो वहां की जो लैंग्वेज है वो मैं कैरी कर रही हूँ। एंड देन जब हीरो बात करता है मुझसे, मेरी लैंग्वेज में बात करता है, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी लिटिल न्यूएंसेस व्हाट Yes, यू yes. डू बिफोर हैंड once you go on Yeah. sets. So I wanted to ask you about that itself, कि वो जो dialect change है, Yeah. so did you prepare for it as well? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज क्योंकि नॉर्मली आम लैंग्वेज, मतलब आम जिंदगी में हम लोग वो लैंग्वेज, भले ही मैं बिहार से हूँ, बट मतलब मेरे, अगर ये बोलूँ कि मैं मुजफ्फरपुर से आती हूँ, और जो मेरा अपब्रिंगिंग रहा है, या फिर जो मेरी जो सोसाइटी या आसपास के जो भाषा की बात करूँ, जो बात है, तो मेरे कुछ ऐसे रीजनल भाषा नहीं है, बट नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो मेरी लैंग्वेज हमेशा रहेगी, हम लोग ऐसे आपस में बात करते, तो इट्स नॉट मैं, इट्स हम। बिफोर, अगर अभी अभी भी मैं, इट्स वेरी अभी तो बहुत ही इनबिल्ट हो गया, क्योंकि 8 साल से मैं मुंबई में हूँ, तो अगर मैं जैसे यहाँ के लोगों से बात करूँ, इट्स लाइक मैं अपने आप को ऐसे मुंबई कर ही बुलाती हूँ, इट्स ऑल माई लैंग्वेजेस, और कुछ भी मैं बात करूंगी वो टोन आ जाता है, इट्स लोकल वाला। तो मैं बिहार में बात करूँ तो हमारी जो लैंग्वेज रही है वो इट्स नॉट मैं से हम रहती है। अभी भी अगर मैं बिहार में किसी को फोन लगाऊंगी तो मैं ऑटोमेटिकली, इट्स नॉट वेरी इंटेंशनल, मैं बात करूंगी अच्छा हम आ रहे हैं,
तो इट वाज लाइक अ डायलेक्ट सेम, वो ऐसा कुछ ऐसा लैंग्वेज वो नहीं रहा था, बट फॉर दिस डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे वर्डिंग्स होंगी जो चंपारण की, इवन दो मेरा जो ददिहाल है वो ईस्ट चंपारण में आता है, गांव आता है, तो वो तो साल में एक दो, साल में एक दो बार आपका आना जाना होता है, व्हेन यू जस्ट हियर दोज लाइन्स एंड डायलेक्ट, यू डोंट एक्चुअली स्पीक दैट। तो वो सारी चीजों के, और जब उस पे होता, मैंने पापा को भी फोन किया था, मैंने बोला अच्छा वहां पे कैसे बात करते हैं आप हम्म। बताओ जरा। तो थोड़े थोड़े उनसे ली मैंने, क्या हाउ डू यू टॉक, गांव में कैसे बात करते हैं, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इज पावर या So yeah. So how was the family's reaction actually? जब आपने पापा के बारे में mention किया, I forgot to ask you. So when your parents came to know that the movie is, nominated for the semi-finals, like it reached the semi-finals, like how was your family's reaction? Everyone was, I mean, just मतलब अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन था। और जब ये न्यूज आउट हुई, मैं तो बोलती हूँ कि जैसे पीआर एंड वो सारी चीजें जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो मुझे वो बाद में आता है। माय फैमिली, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, ये लोग मतलब एक सेल्फ पीआर ही हो जाता है, अरे एवरीवन इज कॉलिंग, दिस हैज हैपेंड, दिस हैज हैपेंड। तो एवरीवन वाज लाइक, आई मीन वेरी प्राउड एंड एक्साइटेड ऑफ कोर्स। और जब ये सेमीफाइनल्स की बात आई, तो तब तो फिर मतलब मीडिया ने भी कवर किया, एंड एवरी मीडिया वाज आल्सो इंटरव्यूइंग देम आल्सो कि कैसे इसकी स्टोरी रही। सो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, एंड दे वर रियली हैप्पी ऑफ कोर्स। I'm sure they must have been very proud of you. या, Or यस। I wanted to know कि has this built any sort of pressure in you? But like abhi, the kind of projects that you pick or choose, like has it had any pressure कि oh now I have to be very what do you say, like I have to be very sure कि कौन से projects मैं pick करूंगी, या फिर because आपके nominations ऐसे movie के हुए हैं, तो has it sort of built any kind of pressure in you while you're picking or choosing any script or project? Pressure I won't say, but I'll just say one thing, because what I have realized कि मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, but when this has happened in everyone's life, in actors life में अगर ये बात करूँ, तो हर इंसान अगर वो outsiders होता है, with no connection in the film industry, and Yeah. whatever you're doing it's on your own, तो डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मे बी अगर कोई बाहर से आता है विद गुड कनेक्शंस और अ गुड सोर्स ऑफ लॉबी, you will get it done in maybe 6 months. We might take it 6 years for the same thing, you know. So, but ये जो फिल्म आई, तो what I thought कि मतलब everyone was praising, FTII की फिल्म थी, एंड हमारे इंडस्ट्री से सब लोग वहां पे जो जाते हैं, लाइक बिग ए लिस्टेड डायरेक्टर्स व्हाट वी कॉल, कि सब लोगों ने फिल्म देखी, प्रेस किया, देन आई थॉट दिस इज गोइंग टू get me that breakthrough movie in my life. It's The going to exposure. Yeah. yeah, so I really thought like that ki that would really help me getting into what kind of projects I want to choose. But on a very sad note, it didn't happen. So Okay. where what I was doing, I was मतलब initially भी अगर ये फिल्म नहीं भी थी, तो I definitely choose my projects based on my मतलब my comfort zone, you can say Yeah. something. But हाँ, I have this destiny, I want to be in this kind of filmmakers, in this time of directors. So I thought कि ये जो इतनी चीजें हुई हमारे साथ, like this Oscars and everyone, the national things, तो मुझे लगा कि चलो फिर ये एक outsiders के लिए भी एक a good breakthrough हो सकता है, because I am now recognized as a, so वो praise तक ही रहता है, and everyone knew my film, everybody, but still the process of auditioning and getting selected and getting rejected remained with me. Still I still have to go through all these things to Yeah. get मतलब एक what I say is, there are a lot of levels in the film industry, the kind of projects based on the production budget, based on the artist there in this project. So जो initially है उनके लिए, मेरे लिए definitely बहुत offers आने लगे, but मैं अब जो ये बात कर रही हूँ, ये उस project की बात कर रही हूँ where I want to be there, maybe kind of you can say A-listers things, तो उसके लिए अभी भी मेरे लिए काफी difficulty है. So coming back to your question कि ये जो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स होता है, तो स्टिल रिमेन्स कि जो मेरे पास सपोज 10 प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस आए, तो डेफिनेटली आई चूज टू कि इसमें ये मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडेंशियल आपके बढ़ जाते हैं, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फिल्म इंडस्ट्री आपकी बढ़ जाती है, लोग आपको एज अ परफॉर्मर जानने लगते हैं, तो मैं ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट नहीं कर लूँ ताकि मेरे जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं मुझसे, उनको ठेस पहुंचे. So definitely
ये सब पॉइंट मैं नोट करती हूँ, उसको करती हूँ। अब मेरे एक्चुअली चॉइसेस ऑफ फिल्म हमेशा रही है कि कोई मैसेज बेस्ड फिल्म रहनी चाहिए सोसाइटी पे, इसमें ऐसे ही नहीं होना चाहिए कुछ, लेकिन और मैं ब्लेस्ड भी रही हूँ इस मामले में कि वट एवर projects have been offered to me, it had something to give back to the society. It had something like, a woman centric subject. It's very coincidental, I would say. Initially I was not in the position to choose these kind of subjects which I wanted to do, but it happened. It happened in the universe. What you manifest, it comes back to you. So this thing has happened कि मैंने जब मैं उस पोजीशन में नहीं थी सिलेक्शन करने के लिए, तब मेरे पास इस टाइप के सब्जेक्ट्स ऑफर हुए। तो अगर आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि आई जस्ट वांट टू डू दैट, तो मैं intentionally or deliberately I make those kind of choices. Okay, so I wanted to know कि like you said, आपने जो exposure सोचा था, like it didn't, Yeah. you didn't receive the kind of exposure that you might have thought or the society might have thought. So did it have any kind of like, mental breakdown or like any sort of draining kind of moment in your life? And like, Yes, do you, absolutely. yeah, Yes, and absolutely. It drains you. Yeah. yeah. And And like, do you share it with your family? Like, do you share it with any close people you have in the industry who go through the same journey or something of that sort? share with like, yeah, I have some close friends जो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, like जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता है, the kind of projects I want to be part of now after you know giving 8 years of my life to this industry and having a good work profile in my credentials, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना। इनिशियली मैं नहीं बोलूंगी कि मैं आओ और मुझे दे दो। सो आई हैव गुड work in films, in TV shows, in web shows, in music video, whatever walk of work we can, it's there in my profile. But still, after 8 years, I am not part of a big commercial projects where I want to be. So it is heart breaking. और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ड्यूरिंग दिस टेन्योर और पीरियड मैं डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और सबसे मुलाकात होती रहती है, मे बी इन इवेंट्स और समथिंग। सो आई गेट प्रेजेस, तो मैं ऐसी मस्ती में बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपना काइंड ऑफ हल्का करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम कि या तारीफ तो इतनी हो गई है, घर में रखने की जगह नहीं है। सो आई जस्ट वांट नाउ गुड वर्क। सो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग बाय गॉड्स ग्रेस। करेंटली ऑल्सो आई एम डूइंग अ वेरी गुड शोज ट्रेंडिंग इन इंडिया राइट नाउ। सो इट्स जस्ट दैट what's there in my कहते हैं ना मंजिल, सो मैं उसकी बात कर रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं लगे कि सो आई एम गेटिंग गुड वर्क बाय गॉड्स ग्रेस। ऐसा कहते हैं कि जो है आपके पास उसकी भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तो आई एम डेफिनेटली थैंकफुल फॉर वट एवर आई एम हैविंग इट राइट नाउ, बट आई कीपिंग माई आईज ऑन माई मंजिल, इट्स ऑलवेज देयर। Yeah. So, like, abhi to OTT platforms and there are a lot of options like OTT platforms and a lot of performance-based acting भी देखने को मिलती है because of the exposure through OTT platforms. So, आपको अभी ऐसा भी लगता है कि people are more inclined towards performance-based acting more than वो जो commercial है उससे थोड़ा हटकर people have started thinking कि oh, performance based acting is also like something that is very important or like people have started liking more. Do you feel like that? Yes, it's the reality. It's not about feeling. It's just the harsh reality. It's not harsh. It's the actual reality. और जब audience ऐसा retrospect कर रही है सारी चीजें, it's very nice to see audience are finally speaking up for it. Yeah. आप कितनी भी 500 करोड़ की फिल्म बना लो और अगर वो कनेक्ट नहीं होती है, देन ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू वॉच इट। बस एक ही थोड़ी थोड़ी सी मुझे एक अभी भी वो चीजें लगती हैं, बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर वी हैव एंटर्ड इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। जो इंडिपेंडेंट सिनेमा से, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर से, उनकी क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फिल्म मेकिंग कम हो गई है। सब लोग चाहते हैं कि हम ओटीटी से या थिएट्रिकल, अगर हम थिएट्रिकल जा रहे हैं, सो वी शुड बी हैविंग अ नेम जिसकी वजह से हम ऑडियंस को पुल ऑफ कर सके थिएटर्स में। एंड देन सो वो अभी भी एक माइंडसेट चलता है इंडस्ट्री में विच वी नो, बट स्टिल ये इतना कुछ प्रिपेयर करने के बाद अच्छा हम इसको फेस ले लेंगे तो उनकी फेस वैल्यू ये है, जो सब्जेक्ट में बहुत कमी हो गई है। दे अच्छा हाँ ठीक है उसको ले लेंगे समझेंगे। एंड नाउ
ऑन द अदर साइड ऑडियंस की आप किसी को भी लेकर आओ, सब्जेक्ट शुड बी देयर, देन माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी इज मोर देन इनफ टू फिल Yeah, द थिएटर्स. yeah, सो true. ये बहुत अच्छी बात है ऑडियंस की. और ये इसकी वजह से हम आर्टिस्ट्स के लिए जो है ना, Hmm. वो एक बहुत क्योंकि एक मोनोपोली हो गई थी, मुझे लगता है कि काफी पिछले सालों में, कुछ सालों से एक मोनोपोली चल रही थी ट्रेंड की. कुछ वही गिने चुने आर्टिस्ट और यही चल रहे हैं, उन्हीं को रिपीट करो, वेदर वेदर ही और शी इज डूइंग गुड और बैड एक्टिंग डज नॉट मैटर, फेस वैल्यू इज देयर, देन डू. जो 4-5 लोग थे वही कर रहे थे. नाउ actors, casting directors are also started exploring good actors. तो और उनको opportunities भी मिल गई हैं बहुत ज्यादा, OTT पे भी and then in theaters also. Yeah, that makes sense. So Hmm. आपसे बात करके, like I understood that you do believe in manifestations and all of that. So do you want to like say it out कि कौन से directors के साथ आप work करना चाहते हो आगे? Like do you want to put it out there? Do you have a मैं list ऐसा of directors? मैं मैनिफेस्ट जरूर करती हूँ, बिकॉज as a human being, if you are, I am very spiritually inclined person, so definitely I am connected to God. Or ultimately I think it's your hard work plus manifestation, and what's written in your destiny is will happen later or sooner. I'll say कि जो आपकी डेस्टिनी में है, later or sooner it's going to come to you. तो मैं इसलिए अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर का नाम नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क विथ एवरी वन ऑफ देम, बिकॉज आई हैव वेटेड अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. तो बट या जो 2-3 मेरे फेवरेट है, जो द काइंड ऑफ कंटेंट आई रियली वॉन्ट टू बी विद, जस्ट लाइक नीरज पांडे सर, अनुभव सिन्हा सर, इम्तियाज अली, एंड मतलब अगर मैं इतना बड़ा नाम ले सकती हूँ तो डेफिनेटली संजय लीला भंसाली सर. So these are some of the directors और उनके जो work है, I really admire a Yeah, lot. yeah, And actors में से बचपन से हम लोग शाहरुख सर को देखते आए हैं, तो I admire him a lot, a lot. और इरफान सर से मैं मतलब हर इंटरव्यू में, मतलब मैं उनको बहुत ज्यादा दिल से उनसे कनेक्टेड थी, तो I really wanted to work with him, but so I also wanted to know कि आप बहुत movies देखते होंगे, I'm assuming movie series or whatever. So like do you want to say कि आपकी कौन सी favorite movie रही है अब तक आपने जो देखा है, like it can be pan Indian, whichever language. Like do you have a favorite movie that you actually liked, or the story or whatever? a lot of movies. मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं मतलब जो भी आ रहा होता है अपकमिंग, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम कंपैरेटिवली कम मिलता है, तो मैं whatever it's there, I just try to watch those series. जैसे रिसेंटली ऐसे वो तो नहीं बोलूंगी कि ये है जो मेरी फेवरेट रही है, and then I was very hooked towards to watch it, was Stranger Things recently. Oh, okay. अगर हम ऐसे ऑफबीट फिल्म्स की बात करें तो I mean, a lot of films जो हम लोग this 11 is one film I really liked, and मुझे ना स्पेस एंड साई-फाई फिल्म्स भी बहुत पसंद है, तो Okay. there's one film Interstellar, Yeah. that film I really love. But I मतलब that depends on my mood. तो मुझे हर टाइप की चीजें पसंद है ना, साई-फाई हो एंड काइंड ऑफ समथिंग ऐसा, जैसे जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, इफ यू फील Yeah, कि yeah. ये वो है, तो इट्स काइंड ऑफ दैट फिल्म की, बट आई रियली Did you watch the लुक फॉरवर्ड टू वॉच. yeah, did you watch the season that came up? Like, did you finish watching? Yeah. I Yeah. was so like, I was just, but for the end, and definitely I want कि इतना hook किया है, तो what we were as an audience expecting कि थोड़ा और मजेदार हो सकता था, हाँ. but yeah. Yeah. Yes. So Palak, like I wanted to know कि like you said, you come from Bihar and you've been living in Mumbai for so long. So is there something that you still continue, like something that is Bihari, or something that you continue to stay along in Mumbai with it? Like, is there something that you still carry forward? एवरीथिंग मतलब मैं Everything. ऐसे बोलूंगी कि मेरे अंदर आधा बिहारी है और आधा मुंबईकर है. बस थोड़ा लैंग्वेज भी, मतलब मैं थोड़ी मराठी भी हल्का कोशिश करती हूँ, बट वो बहुत सारी सी चीजें हैं, वो मेरी मराठी अपने आप आ जाती है, द डायलेक्ट इफ यू से. Yeah. बट वो बिहारी भी है मेरे अंदर. मतलब व्हाट आई ऑलवेज से इज, यू कैन टेक अ
Bihari out of Bihar, but never a Bihar out of Bihar. So there was a very recent reel of mine also. I have shared on this line. It got really viral Oh, on okay. Instagram. Oh, So a lot of things. जैसे कि अभी ठंड है तो मेरे मम्मी डैडी आए तो बिहार में तिलकुट एक बहुत फेमस डिश होता है जो मतलब लाइक ठंड okay. में बनता है. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट. इट्स लाइक आई डोंट नो कि मतलब कि वो मैंडेटरी है. मतलब हर साल हमारे पास वो आता ही आता है. वो बिहार में अच्छा, भी वो सिर्फ ठंड में लगता है. मीन्स ऐसा okay. बोलते हैं, गया का तिलकुट बहुत फेमस है. मतलब वो हर जगह बनता है. इट्स अ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग जो कभी अगर कोई बाहर वाला देखेगा कील के ऊपर उसको बनाते हैं. यू नो कांटी कांटी के ऊपर यू नो जस्ट थ्रो इट एंड उसके लावा से इट्स क्रिएटेड. इट्स अ वेरी Okay. यूनिक मेथड ऑफ मेकिंग इट. एंड आई रियली मिस कि अगर वो नहीं होता और सिर्फ ठंड में आता है. इट्स लाइक 2-3 months के लिए वो आता है. अच्छा. तो अभी आया. अब मम्मी पापा लोग आए तो मैंने मंगवाया उनसे. Okay. लिट्टी चोखा इज देयर. तो मैंने 2-3 ऐसे स्पॉट्स देख लिए हैं मुंबई में जहाँ पे Oh, ऑथेंटिक लिट्टी चोखा मिलता है. तो आई हाँ. ठीक है भाई मैं तो खाती हूँ क्योंकि बिहार से अगर आपको पता होगा तो लिट्टी चोखा इज रियली फेमस डिश. Okay. और बाकी को जो चीजें होती है ना जो हम मिस करते हैं जो घर पे बनता है तो वो सारी जो मेरी हाउस हेल्प है उनको मैंने ऐसा बिहारी फ्लेवर से ट्रेन कर रखा है. तो शी मेक्स सत्तू के पराठे एंड सत्तू ये सारी चीजें तो मैं मिस नहीं करती हूँ ये खाने वगैरह. फिर मम्मी आती रहती है तो जो मुझे और चाहिए होता है तो वो मंगा लेती हूँ. Okay. Also, before we conclude, like I just wanted to know what is keeping you busy these days? Like, are you working on something, any new projects? Yes, working on Seher Hone Ko Hai. I am playing Okay. Safia Beg, the negative lead of the show. And for your information, I would like to tell you that this is the first project that I'm working as a negative character. So this is very challenging for me. और मुझे बहुत मजा आ रहा है. Initially मैं थोड़ा सा ये थी मतलब आप एज एन एक्टर मैं हमेशा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे हॉरर जॉनर बहुत पसंद है. मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि हॉरर इज समथिंग आई आई थिंक आई विल डू रियली वेल. लेकिन जब तक आप करोगे भी आपको पता नहीं है Yeah. कैसे कर पाओगे. सो आई हैव ऑलवेज टिल डेट a strong character. Definitely I've played strong characters in different projects. Also in some TV shows I've also played a very in TV show it's always the heroine is always like very bechari roni wali and like सब उसको जुल्म कर रहे हैं. तो दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर इज समथिंग व्हिच वाज वेरी नेचुरल एंड कमिंग टू मी. सो फॉर दिस नेगेटिव आई एम प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. आई डोंट नो कि मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. इनिशियली 4-5 days वाइल शूटिंग आई वाज रियली कि मैं घर पे फोन करती थी कि नहीं हो रहा है मुझसे. आई थिंक इट्स नॉट कमिंग नेचुरल फॉर मी. मैं तो चाहती थी नेगेटिव करूं लेकिन मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे कि अरे नहीं यू आर गुड एक्टर. उन्होंने हमेशा हर कैरेक्टर को इतने अच्छी तरह परफॉर्म किया है. सो हो जाएगा 2-4 दिन टाइम लो सारी चीजें हो जाएंगी. बिकॉज उनका था कि नहीं ठीक है सब कह रहे हैं तो लेट मी ऑल्सो ट्राई गिव माई. अगर मैं 100% दे रही हूँ तो लेट मी ट्राई 1000% टू इट. जी. So after 4-5 days, it again I get into the shoes of Safia Beg, and the kind of response audience are giving me, it's like, matlab memorable and I'm so overwhelmed. Definitely मैंने ये सोचा नहीं था कि इस कैरेक्टर का नेगेटिव कैरेक्टर के लिए लोग इतना प्यार देंगे. नॉर्मली you get hatred, but I also get a hatred comment, but in the way they want to put like something कि सफिया को जब भी हम ऑन स्क्रीन देखते हैं ना खून खौल जाता है. हाँ. And then bracket में you're so super killing the role, so loving you. So these kind of comments अगर hatred भी दे रहे तो साथ में they are showing कि मतलब you're so killing the role, you're so Yeah. apt for it. And also I have implemented some layers of comedy elements into this character which earlier was not there. But in some scenes जब मैं read करती हूँ screenplay and scripts so I feel कि maybe because this character with Safia Beg I'm playing she has a different kind of banter with different kind of characters. Okay. With her husband she's different. With Seher the protagonist she's different. With Kausar which is played by Mahi Vij she's different. With some other characters she's entirely different. So wherever I can just add some kind of masala elements
And also I was I mean I have never done comedy also on screen. So Okay. I've also मतलब कि मैंने अपने अंदर में ये दोनों चीजें इस शो के जरिए मैंने एक्सप्लोर की हैं कि ओके आई कैन डू नेगेटिव एंड आई कैन डू अ कॉमेडी रोल Yeah. वेरी वेल. सो सो थैंक यू सो मच फॉर द ऑडियंस, और जो भी जुड़ रहे हैं इतना प्यार देने के लिए. कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग मी. Yeah, you're very blessed to have like a very good audience, a good family as well. So Absolutely, absolutely. we're Fingers wishing you crossed. all the best, all the best. And before we conclude, one more small thing to ask, like, is there any advice that you want to give to a lot of budding actors who have just started their journey? Because even like you have worked a lot, like to reach the place where you are right now. So is there any kind of small advice that you want to give them, the new budding actors? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस आई वुड गिव कि अगर आप आ रहे हैं तो मतलब यू नो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज रियली इंपॉर्टेंट. सबसे Yeah, इंपॉर्टेंट कि या तो आप फिनेंशियली स्टेबल हो या आपकी फैमिली स्टेबल है. बिकॉज right, आफ्टर 2-3 months इट्स लाइक कि आप काम के लिए आए हो भूल जाओगे, आप पैसा इकट्ठा करने में रह जाओ. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि या तो आप कन्विंस करके आओ. मतलब हर फैमिली वैसे नहीं हो सकती कि आप सपोर्ट करे फर्स्ट में, बट एटलीस्ट ट्राई टू कन्विंस एंड देन कम, सो दैट right, यू डोंट हैव दैट प्रेशर इन यू, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है मुंबई में. right, सो दैट सपोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग. द सेकेंड थिंग इज कि या तो आप आने से पहले यू गेट ट्रेनिंग्स. बिकॉज द जैसे अपॉर्चुनिटीज की हम लोगों ने बात की कि हमारे पास ओटीटीज और इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, तो कंपटीशन भी उससे 10 गुना बढ़ गया है. द right. काइंड ऑफ पीपल दे आर लैंडिंग एवरी डे इन मुंबई टू बिकम एन एक्टर, Mhm. वो मतलब जो अब जो लॉबी वाले लोग हैं जो प्रिविलेज्ड है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ. जो बाहर से आ रहे हैं, भीड़ मतलब भीड़ के तरह आते हैं, मतलब वो बता रही हूँ मैं. सो वो भी बहुत बढ़ गया है. तो अगर आपको क्लिक, आप अच्छे भी एक्टर हो तभी भी आपको पता है ना कि 20 साल भी लग जाएंगे क्लिक होने में. जब आपको क्लिक हो जाओगे, यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स की अभी जो लेट 40s एंड 50s में दे आर क्लिक किलिंग इट. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मतलब ही वाज डूइंग डेफिनेटली. जब वो नोटिस हुए तो तब तक वो 16-17 साल उन्होंने ही हैड गिवन टू द इंडस्ट्री, है ना. सो Right. यू डोंट नो कि अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको कब मिलेगा काम. तो यू नीड टू बी वेरी मच स्टेबल मेंटली, और उसके लिए जब वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब तक आपके पास उतना क्राफ्ट होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए और आप यू आर नॉट वेल इनटू योर क्राफ्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेनिंग आप कॉलेज में लो, स्कूल में लो, थिएटर्स करो, स्कूल के साथ थिएटर कर लो, घर पे कर लो, वर्कशॉप्स कर लो. तो दैट इज दी फोरमोस्ट, आई मीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मेरी तरफ से अगर कोई सजेशन लेना चाहता है तो ये चीजें हैं. और यहाँ पर आने के बाद अगर क्योंकि मेरे पास तो खैर कोई कंटेक्ट नहीं था कि मैंने आने के बाद आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और रिसर्चिंग व्हाट है. अगर आप आने से पहले अगर एक्सप्लोर कर लो लॉट ऑफ ऑडिशंस नाउ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. जैसे मुकेश हावड़ा कास्टिंग कंपनी है या ऐसे ऐसे 2-3 और कंपनीज है, तो ये अलग अलग सेंटर्स में ऑनलाइन ऑडिशंस भी करते हैं. तो आप वैसे भी एक्सप्लोर करो सो दैट आप यू स्टार्ट गेटिंग यूज टू ऑफ गिविंग ऑडिशंस घर से Right. ही. हाँ. तो ये एक बहुत पॉजिटिव हो गया है आज के ज़माने में. उनके तो अलग अलग सेंटर्स भी, दिल्ली, चंडीगढ़, मुझे लगता है अलग अलग जाते हैं. मतलब उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कास्टिंग एजेंसीज हैं जो इस टाइप के सेंटर्स एंड वर्कशॉप्स कराते रहते हैं. तो ये क्या होगा कि आप एक बिफोर कमिंग टू मुंबई आपके पास ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड रहेंगी, तो वो आप कर सकते हो. और दूसरी चीज़ है कि आप जब मुंबई आओगे, आप जब ऑडिशन देने लगोगे और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कास्टिंग डायरेक्टर बोल के या फ्रेंड बोलकर कि आपको एक प्रोजेक्ट पे कि अच्छा ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो आप उसमें फंस के नहीं रहना. मतलब फंस के रहेंगे ना, कहने का मेरा मतलब है कि क्योंकि मैंने ये चीज़ें की हैं कि 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट थे मैं शॉर्ट लिस्टेड और फाइनलाइज थी, और लास्ट मोमेंट में मतलब मैंने उसके पीछे 6 महीने दिए कि नो आई एम फाइनलाइज, आई हैव साइन द प्रोजेक्ट, कल मुझे शूट पे जाना है. आई वॉज रिप्लेस्ड रातों रात. तो वो 6 महीना मुझे लगा कि जब मैं फाइनल हो गई हूँ कि आई शुड नॉट गो एंड डू ऑडिशंस फॉर अदर वर्क. तो ये ऐसा होता है रातों रात आपकी चीजें खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद जो आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो. सो दिस आई हैव गॉन थ्रू. तो मैं ये सजेशन करूंगी कि अगर आपका फाइनल भी हो जाता है, जब तक आप फ्लोर पे रिलीज नहीं हो जाता है कि नथिंग इज सर्टेन इन दिस, तो आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है कि जब तक वो स्क्रीन पे नहीं आ जाए. मतलब ये तो मैं शूट के पहले की बात कर रही हूँ कि शूट पे नहीं बुलाया गया, मुझे रिप्लेस कर दिया गया आफ्टर साइनिंग द प्रोजेक्ट. बट ऐसे होता है कि शूट भी हो गया तभी भी रिलीज नहीं हो गया, डब्बे में चली गई फिल्म, तब आपकी और 2 साल की मेहनत चली जाती है, 1-2 साल की मेहनत चली जाती है. तो इस टाइप की चीजें मेंटली आप प्रिपेयर रहिए एंड डिप्रेस मत होइए एंड ऑलवेज वर्क पैरेलली. Yeah. किसी के बोलने पे आप रुकिए मत. जी. तब जब वक्त निकल जाए तो यू डोंट रिग्रेट.
Yeah. So thank Yeah. you so much, Falak. We are so Thank you. glad we got to talk to you. And it was a really lovely chat, like a lot of things explored. And it was really special to have you. And we wish you all the best for everything that's coming your way. Thank you so much. It was an honor and pleasure talking to you, and hope we meet in person very soon. Yeah, thank you.